Very good evening. Thanks for tuning in to CNN News 18. Well, our election bus has now reached Varanasi. Varanasi, remember, is known for all the bright and right reasons. It's steeped in mythology, it's steeped in tradition, and also we've seen how there are so many echoes of ancient chants that continue to reverberate in this ancient town, in this holy city of Varanasi. And electorally speaking as well, apart from the bright colors, the vibrant colors, the spirituality that's seen at every nook and corner in the city, politically speaking as well, it's an election that everyone is hooked on to. BJP's chief campaigner, Prime Minister Narendra Modi, is seeking a re-election for a third time from this constituency ever since he made his electoral debut from Varanasi after leaving Gujarat in 2014. He's up against Ajay Rai, the Uttar Pradesh State Congress chief, and there are others in fray as well. A BSP candidate, a comedian who's also contesting as an independent. So the election is very, very interesting here, and that is of course being reflected in the manner in which the campaigning is also being witnessed in this holy city. Right now, I am right outside the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya. What you see behind the bus is the Sanskrit University. It's one of the largest Sanskrit universities in the world and has also produced several Sanskrit scholars. Before we get into Sanskrit, we talk about the language, we talk about the host of spiritual centers in Varanasi, and we of course introduce our guests, the youth leaders of Varanasi who are joining us at 5 p.m. this evening. We quickly take a look at the kind of day we had a little while earlier. Let's quickly open this up with our youth leaders, a host of them who've taken out time and, who've shown us the patience really in this heat. It's almost touching 45 degrees Celsius. It's quite warm here in Varanasi, just like it is in the national capital as well. But they've been patient and kind enough. And the mood on the ground is very, very clear. It's for everybody to see, all the viewers of CNN News 18. And I'm going to have to give a pause before I introduce them. Since it's Prime Minister Narendra Modi's constituency, I'll begin with Rajmangal Pandey ji of the Bharatiya Janata Party. बीजेपी तो नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, पर विपक्ष कह रहा है 400 पार तो नहीं लग रहा है. आपको क्या लगता है? विपक्ष का तो काम है कहना, और हमने अपना रख दिया है कि हमारा नारा है 400 पार. 4 तारीख को हम लोग दिखा देंगे. बोलने से क्या होता है? नहीं, पर ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस तक सीमित है या ओवर कॉन्फिडेंस है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ के कैंडिडेट है? नहीं, प्रधानमंत्री हमारे कैंडिडेट हो तो ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस हमारा हो जाता है कि हमारा सबसे बड़ा नेता हमारा सांसद है, तो 400 पार तो होना तय ही है. विपक्ष का तो काम है कहना, ये उसकी भूमिका है, यही उसको कहना ही है, हमारे विरोध में कहना है, उसका काम भी है. मजबूत लोकतंत्र की नींव भी यही है कि विपक्ष को कुछ ना कुछ कहना चाहिए. तो 400 पार के लिए हम सब आश्वस्त हैं और हमें लगता है 400 पार से काफ़ी अधिक संख्या में हम लोग, और यहाँ तो हमारे पूरे दुनिया के चहेते आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं, तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस तो बनता ही है. 400 पार के अधिक तो बहुत अधिक हो जाएगा. पर अगर रंजीत कुमार तिवारी जी, मैं आपके पास आऊँ, आपको क्या लगता है? कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अजय राय, पिछले इलेक्शन में वो 3rd प्लेस पे थे, 3rd पोजीशन में थे. सपा के कैंडिडेट भी थे और अब तो गठबंधन है, तो वो एक चुनौती तो नहीं है कांग्रेस के आगे. पर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी नेत्री प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव जी के रोड शो के बाद मोहन यादव जी को यहाँ के लोकल, जैसे जातिगत समीकरण में सिर एक जगह आता है, वहाँ पे यादव बस्ती बहुत मजबूत है. वहाँ पे मोहन यादव जी सीएम मध्य प्रदेश को बुला के सभा कराई जाती है. उस सभा में भी 60 से 65 लोग ही उपस्थित हो पाते हैं, जिसको मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ. इतने कॉन्फिडेंस हैं कि कितने केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, सब लोग गली गली घूम रहे हैं. इतने कॉन्फिडेंस है अजय राय से. ये लोग इतने डरे हुए हैं लोग.
नहीं, डर है और साथ भी निभा रहे हैं क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट चुनाव है, इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको कुछ कहना है उनको, आप बताइए। मैं सपा की स्टोरी बताइए, सपा का क्या पोजीशनिंग है? यूपी के लड़के कहा जा रहा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जोड़ी को, यूपी के लड़के टक्कर दे पाएंगे? दोनों लड़के तो खासकर यूपी से ही बिलोंग करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी वोट तो राहुल गांधी दिल्ली में दे रहे हैं। आपने अभी कहा कि दोनों लड़के तो उनका होम टाउन तो यूपी ही है, गृह जनपद है दोनों लड़कों का, बल्कि प्रधानमंत्री जी का नहीं है, वो तो गुजरात के हैं ना। और जनप्रतिनिधि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शहरवासियों को ऐसा चुनना चाहिए जो लोकल हो। अगर मुझे कोई समस्या होगी, मैं काशी वासी हूँ, तो मैं किससे अपनी समस्या कहने जाऊंगा? कौन है सुनने वाला? इसका जवाब है किसी के पास? बताइए, जवाब है आपके पास? हमारे पास प्रधानमंत्री जी का एक अलग से कार्यालय भी खुला है, शायद हमारे मित्र बंधुओं को नहीं पता है, और ढेर सारे फोरम हमारे यहाँ बने हुए हैं। और ऐसा नहीं है ये ये तो गौरव का विषय होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आपके अपने क्षेत्र से आते हैं, तो प्रधानमंत्री संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री रोज यहाँ दिन भर बैठे। आप भाजपा से ये सवाल उठा रहे हैं, एक और सवाल उठता है कि सपा और कांग्रेस इस बार तो एक साथ है, अलायंस में, गठबंधन में, पहले ऐसा नहीं रहा है हमेशा, तो ये भी वोटर को एक बहुत कॉन्फिडेंट इंप्रेशन नहीं देता। आपको नहीं लगता? अपना दल का नाम क्यों नहीं ले रही हैं आप? भाजपा के साथ अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है, राजभर जी जो अभी इतना फूल की वर्षा करते थे वो भी है साथ में, तो भाजपा मत बताइए, उसके साथ साथ 38 दलों का गठबंधन भी बताइए। यहाँ तो सिर्फ 2 दल हैं, और जो खासकर दोनों लड़के यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी से सांसद चुन के तगड़ा दल है, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। किसी को बीजेपी के बारे में और कुछ? देखिए, उनके बात का मैं जवाब दूंगा। तो इनका मानना है कि इन्होंने अपना कांग्रेस या सपा जो पार्टी है उसकी तुलना राजभर जी की पार्टी से और अपना दल के बराबर कर ली है। ये मानते हैं ना। सुनिए, वो कह रहे हैं, एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि गठबंधन तो यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, गठबंधन तो यहाँ पे भी है, तो सिर्फ बीजेपी की बात है। एक क्षेत्रीय पार्टी का गठबंधन होता है, एक राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन होता है। जो पार्टी जो कभी सरकार में रहती थी, आज सैकड़ों की जो गिनती के आसपास रह जा रही है, उस पार्टी से गठबंधन और एक सदैव 7 या 8 पार्टी 6 क्या कहते हैं, 7 या 8 नहीं 7 और 8 लोकसभा चुनाव पे लड़ी। अभी समझ नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी स्ट्रेटजी है, जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, वो एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। एक सेकंड, एक करके बात करेंगे तो ही दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंचेगी। एक सुन लीजिए। मेरा भाई थोड़ा कंफ्यूज है। बात यहाँ पे पार्टी की नहीं हो रही, कितने लीडर इनकी बात नहीं हो रही, बात यहाँ जातिगत समीकरण की हो रही है। अभी थोड़ा देर पहले कांग्रेस के मेरे साथी भी बता रहे थे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जो है अपने एक मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाति समीकरण साधने के लिए भेजता है। केंद्रीय मंत्री जयशंकर जी आते हैं, तमिलों का संगठन बना करके उनके साथ संगमम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर नहीं है तो और क्या है? आप क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा नहीं देख रही है? एक सेकंड, इससे पहले आप सब एक दूसरे पे टूट पड़े, मुझे एक और सवाल आपसे भी पूछना है, या कोई भी कांग्रेस के लिए ये जवाब देना चाहते हैं तो हाथ उठा लीजिए और मैं आपके पास आ जाऊंगी। यूपी के लड़कों की बात हुई और राहुल गांधी की बात हुई, और उन्होंने कहा कि यूपी के तो दोनों लड़के इधर के ही हैं, जन्मभूमि या कर्म भूमि उनकी यहीं की है। तो राहुल गांधी की कर्म भूमि पे तो इतना बड़ा सवाल उठा हुआ है। अमेठी रायबरेली में ही बहुत देर कंफ्यूजन चल रहा था। प्रधानमंत्री का सीधा डर है। एक तो यहाँ से रो के चले गए, कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री बनारस में 2 बार के सांसद ही रो रहे हैं। पहले बेटा था, अब गोद ले लिया। ये बताइए, माँ गंगा में पूरे बनारस का सीवर जाता है, 10 साल में वो बंद नहीं हो पाया। इसका जवाब प्रधानमंत्री जी देंगे। चलिए फिर मुद्दों की बात करते हैं। ये आपस में एक दूसरे को बोलने से कुछ नहीं चलेगा। क्या क्या काम किसने किए, ये बताइए कि कांग्रेस किस काम का आज वादा करती है और बीजेपी ने क्या किया है। 2 टर्म से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री के पास वाराणसी, उन्होंने कहा है कि मुझे गंगा माँ ने गोद ले लिया। क्या किया है, काम बताइए। हम इसका जवाब देते हैं। पहली बात तो जो आपने कहा कि बीजेपी ने क्या काम किया है, आज ये 7वें चरण का चुनाव, आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है, 6 चरण का चुनाव हो चुका है, और उसके बाद क्या आपने कभी भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के मुंह से अपने काम की बात सुनी? ये मीडिया का काम नहीं है कि क्या काम किया है, ये उनका भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का काम है कि ये बताए कि हमने ये किया है। हम इस बात पे वोट मांगेंगे। तभी आपसे पूछा जा रहा है कि आप उनको बताइए
बताइए कि क्या किया है। मोदी जी, माँ से मोदी जी होता तो माँ से उनको बड़ा प्रेम है। जैसे माँ गंगा ने गोद ले लिया, माँ गंगा ने बुला लिया, उसके बाद माँ से मुसलमान, माँ से मछली, माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र, अब मुजरा पे गिर गए, माँ से मुजरा पे गिर गए। अब ये बताइए भारतीय जनता पार्टी अपना काम कब बताएगी? ये मीडिया का काम नहीं है कि जनता से पूछे, ये मीडिया का काम उनसे है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे कि आपने काम क्या किया। मुजरा, मंगलसूत्र ये सब नहीं चलेगा, मुद्दे की बात होनी चाहिए। आ रही हूँ मैं आपके पास। मैडम, बड़े फख्र की बात है कि सारा देश सांसद चुनता है, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। अब बनारस में जो 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, कि यहाँ पे मेरी बात, प्रधानमंत्री जनता मैंने नहीं चुन सुनिए सकती है। सुनिए प्रधानमंत्री यहाँ आप बोलने तो दीजिए। यहाँ बोलने दीजिए सर, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी भावनाएं हम समझते हैं, आपको आपका समय दिया जाएगा, बोलिए। देखिए, रही बात प्रधानमंत्री जी की, बनारस को उन्होंने जो दिखलाया है पूरा विश्व देखता है। और जिस तरह उनका रोड शो हुआ वो पूरा देश ने, पूरा विदेशों ने देखा कि जनता कितना प्यार करती है। कहने की बात, क्या बनारस के लोगों ने सोचा था कि हमको इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा? क्या बनारस के लोग सोचे थे 3-3 रेलवे स्टेशन मिलेगा? क्या कॉरिडोर मिलेगा? यहाँ की रोडें देख लीजिए, आप लखनऊ चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, तो विकास की गंगा देखना है तो बनारस में देखिए आप। विकास, एक सेकंड, विकास हुआ है। वंदे मातरम एक्सप्रेस की बात की जाए, वो देखा है हमने। हाईवेज वाराणसी की तरफ जो आ रहे हैं वो देखे हैं हमने। तो विकास तो हुआ है, हम मना नहीं कर सकते। एक सेकंड सर, आप दे दीजिए। विकास का वादा जो है, आप जहां अभी वर्तमान में खड़े हैं, ये संस्कृत का एक्सपोर्ट है। मतलब विश्व में इससे बड़ा विश्वविद्यालय कोई नहीं है। 2014 में जो लोकल मैनिफेस्टो बना था प्रधानमंत्री जी का, इस विश्वविद्यालय को केंद्रीकरण करने का विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरता है, इस विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री जी का सभा होता है, इस विश्वविद्यालय में हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है। इसमें मोहन भागवत जी का कार्यक्रम होता है, इसमें जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम होता है, इसमें आदित्यनाथ योगी जी का कार्यक्रम होता है। लेकिन इस विश्वविद्यालय को केंद्रीकरण करने की मांग जो इन्होंने 2014 में अपना वादा दिया था, अभी तक पूरा नहीं किया। बशर्ते दिया क्या कि पीछे से 2 एकड़ जमीन सरकार ने ले लिया। पर कांग्रेस के अजय राय अगर आएंगे और यहाँ सांसद बनेंगे तो आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा? ऐसा होगा। अजय राय यहाँ के लोकल हैं, काशी के बेटा है। अगर वो यहाँ से सांसद बनते हैं तो ये विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, ये गारंटी। एक और सवाल है मेरा, और आप इस पे जवाब दे सकते हैं कि ये जो इतना अलायंस में तालमेल में प्रॉब्लम आता है, कहीं किसी स्टेट में, किसी राज्य में अलायंस बैठ रहा है, किसी राज्य में अलायंस टूट रहा है, कोई सहमति नहीं है, तो ये विश्वास नहीं डगमगाता वोटर का? नहीं, देखिए, वोटर का विश्वास नहीं डगमगाता। पहले मैं अपने बारे में परिचय देता हूँ। मैं मोहम्मद तैयब एडवोकेट, वह पार्षद, वर्तमान पार्षद हूँ। मैं निर्दल होकर मैं इंडिया अलायंस के साथ क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो जो है, वो युवा न्याय, मैं एक युवा हूँ, कैसे वो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने जो अप्रेंटिसशिप अधिकार एक्ट को लेकर आने की बात की है, जिसके 1 लाख रुपए हर युवाओं को, जो डिप्लोमा और स्नातक कंप्लीट कर लेगा, हर युवाओं को मिलेगा। उन्होंने नारी न्याय, महालक्ष्मी, हर घर की जो बुजुर्ग महिला हो उसको प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने का वादा किया। किसान न्याय की बात की, जो किसान न्याय जो इस समय एमएसपी दे नहीं पा रही है सरकार, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट रहेगी उसके अनुसार कांग्रेस की अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आएंगे, पहले सुनिएगा, मैं बता लूं मैं अपनी बात। हाँ, तो अब देगी ना कांग्रेस, इसीलिए तो 10 साल सरकार। और आप 1 लाख रुपए का जो प्रॉमिस बोल रहे हैं, उस पे भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पे भी काफी सारे। एक सेकंड, किसी की आवाज कहीं नहीं पहुंच रही है। एक मिनट, जो आपने बोला 1 लाख रुपए महिलाओं के लिए, उस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो कैसे, कहाँ से आएगा। और मिडिल क्लास के लिए तो बहुत दिक्कत बढ़ती जा रही है ना, टैक्स पेयर का मनी जा रहा है और फ्री में वो दूसरे को पैसा दिया जा रहा है। तो एक रियलिस्टिक एंगल से बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा। पर वो भी छोड़िए, बीजेपी से ये सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है कि रोजगार और जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, रोजगार है, उस पे इंसान, उस पे वोटर आज सवाल पूछ रहे हैं। जो टूरिज्म से रोजगार आया है, वो तो आया है, टूरिज्म से रोजगार आया है। आपने क्यों नहीं बनाया? 70 साल आप लोगों ने शासन किया, क्यों नहीं किया? आपने रंगनाथन रिपोर्ट इनके में आई, सुनिए इन्होंने क्या किया है।
हम कहते हैं हज आपने क्यों नहीं बनाया? देश में 70 साल राज आपने किया है। हमने तो 2014 से। एक सेकंड, पर ये 70 साल वाली बात भी ये 70 साल वाली बात भी बिल्कुल सही है, और आप लोग इतनी लाउडली बात कर रहे हैं कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स को भी नहीं सुन पा रही हूँ। तो एक सेकंड, we'll take a break. We will take a break. It's a heated debate which explains why it's so politically charged a constituency. If I'm not wrong, my producer is asking me to head into a very quick break, so we'll take a short break. We'll be right back with lots more because we have a lot of action unfolding in Varanasi, not just in the political circle, but otherwise as well. It's a colourful constituency. We'll be right back with more. Welcome back. Like I promised, we will show you different colors of Kashi, of Banaras, Varanasi. Call it what you want. But remember, this being a spiritual hub, many say that nothing is going to be possible as far as any tourist's pilgrimage journey is concerned, spiritual journey is concerned, until he visits the Kal Bhairav Mandir. In fact, earlier today, like I said, several BJP leaders are in Kashi. They're campaigning for Prime Minister Narendra Modi, and one of them was JP Nadda, the BJP national president, who was also at the Mandir premises, offered prayers to Baba Kal Bhairav. We tried to capture that moment and also spoke to the chief Mahant there, who told us why this mandir is so integral to the Hindu faith. Take a look. Well, we are at one of the holiest pilgrimage sites in Varanasi, Kal Bhairav Temple, and what you see here is BJP National President JP Nadda. He's come to offer prayers here, and एक मान्यता है वाराणसी में, काशी में, कि किसी भी काम की शुरुआत अगर आप काल भैरव के दर्शन से करें तो वो काम सफल रहता है, नहीं तो वो अधूरा रहता है. You're seeing BJP National President JP Nadda. He's offering prayers now at the Kal Bhairav Temple in Varanasi. It's one of the holiest sites in Kashi, and you see Har Har Mahadev slogans being raised with the entire BJP cadre accompanying him at the Kal Bhairav Temple while he continues to seek the blessings of Baba Kal Bhairav. Like I said, it's a belief, a strong belief in Kashi, that if you begin your visit to Varanasi with the Kal Bhairav's darshan, then most likely, in all likelihood, you're going to succeed at whatever you've come to Kashi for. That belief today is being seen here in Kal Bhairav Temple. The entire BJP cadre is here accompanying JP Nadda, the BJP national president, while he continues to offer prayers at the Kal Bhairav Temple. You can see him there offering prayers at one of the holiest pilgrimage sites, that is Kal Bhairav Temple, seeking the blessings of Baba Kal Bhairav. And like I said, this is a place that is the holiest of them all for the Hindu faith, for those who worship Baba Kal Bhairav. And on your screens is BJP National President JP Nadda, who's come here to offer his prayers. Now remember, the entire BJP leadership is in Kashi today and tomorrow. The next few days they're going to be camping in Kashi itself. And once again we see India's cultural capital transform into a political headquarters in a sense. BJP leaders gathering in Varanasi for one final push for the Lok Sabha elections. JP Nadda, the BJP national president, offering prayers at the Kal Bhairav Mandir. जगह की मान्यता का उदाहरण यहाँ के भक्तों को देख के लिया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना विश्वास है बाबा काल भैरव में. You can see the number of devotees, who've queued up to seek the darshan of Baba Kal Bhairav. Why is this mandir so integral to the Hindu faith? I'm going to try and decode that for our viewers.
here on CNN News 18. I'm being joined by Deepak Dubey ji, who's the Mukhya Mahant of the temple, to really understand where this faith is coming from, what it means to the people of Varanasi, of people across the country. Deepak ji, हमें बताइए, एक तो थोड़ा हिस्ट्री में जाके बताइए कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था. काफ़ी सारी स्टोरीज हैं इस मंदिर को लेके, और इतना विश्वास जो लोगों में है, इतनी लंबी लंबी लाइनों में जो लोग खड़े रहते हैं, वो विश्वास कहाँ से आ रहा है? काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन यहाँ के प्रधान देवता बाबा काल भैरव हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि राजा विश्वनाथ और रानी अन्नपूर्णा और काशी कोतवाल और मंत्री बाबा काल भैरव हैं, और भैरव कली के देवता हैं. कली में 5 मुख्य देवताओं की पूजा होती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, शीतला, भैरव, हनुमान. तो भैरव जी तंत्र में, सात्विक में और राजसी में तीनों पूजे जाते हैं. तो इसलिए हर तबके के लोग यहाँ आके इनका दर्शन पूजन करते हैं. और यहाँ का दर्शन पहले, हर जगह से पहले किया जाता है, नहीं तो आपके दर्शन असफल रहते हैं, कहा जाता है. काशी में बिना इनकी आज्ञा से कोई भी धर्म कार्य पूरा नहीं होता. ये काशी के मुख्य देवता हैं. पहले कोई भी आता है, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, अधिकारी हो, इनसे आज्ञा लेके ही अपने कार्य को सफल करता है. इसलिए में इनके दर्शन का महत्व विशेष है काल भैरव जी का. यहाँ राजा महाराजा, मंत्री, मिनिस्टर कभी भी आए तो काल भैरव का पूजा करते हैं. यहाँ ग्वालियर स्टेज था, माधवराव सिंधिया थी, सभी का पूजा भैरवाष्टमी को बाबा भैरव जी का होता है. और हमारे मोदी जी, उसके पहले राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी थे उपराष्ट्रपति, वो भी यहाँ आए हैं. यानी हर काल हर समय में जो भी यहाँ रहा है, बाबा का दर्शन पूजन किया है. कहा जाता है बाबा भैरव के, काल भैरव के जो दर्शन कर ले, उनकी मन्नत भी पूरी हो जाती है. इनके दर्शन मात्र से, जैसे इनका एक मंत्र है, वाराणस्याम भैरव देव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति. इनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर का पाप कट जाता है. इसलिए लोग यहाँ आते हैं कि बाबा का एक झलक मिल जाए और हमारा जीवन धन्य हो. धन्यवाद. आपके कारण हमारे दर्शकों का भी दर्शन हो गए बाबा भैरव के. This will be followed by a report from the Kashi Vishwanath temple as well. Of course, we don't need to get into what Kashi Vishwanath temple is and what it really means to those who follow the Hindu faith and belief. But I want to quickly talk about the Mandir issue for a while, and I'm going to pose that question to my friends who are with us here on CNN News 18. मंदिर का जो मुद्दा है, ये हमने सर देखा है कि इलेक्शन के बाद बार बार काफ़ी लोग इसको उठाते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं इसको नहीं उठाना चाहिए. आपको लगता है कि जब वोटर वोट डालता है तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि वो ध्यान में रखता है? मैं पहले ये कहूँगा कि आपके माध्यम से मुझे कुछ कहने का मौका दिया आपने. मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में मैं घूम चुका हूँ, और कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी अधिकारी तक, और सारे राज्यों में घूमकर एक आसिफ भाई ऐसे आदमी मिले मुझे बनारस में, जिन्होंने मुझे मौका दिया खड़े होने का. मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री 100 जन्म भी नहीं मिलेंगे आपको जैसे प्रधानमंत्री हैं. उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़िए, वर्ल्ड में मैं जर्मन, जापान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, अमेरिका तक घूम आया. मेरा पासपोर्ट साथ लाए हो, देख लीजिए अगर कहीं आपको शक लगता हो. प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ का प्रधानमंत्री. ये तो प्रधानमंत्री का हो गया. मंदिर बताइए, मंदिर मुद्दा है या नहीं? चलो पहले, प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं उन्हें पूरा सम्मान मिलता है. उनके सम्मान के जरिए से हमें भी सम्मान मिलता है. जिन मुल्कों में भी मैं गया हूँ और मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है, तो मुझे ही बैठने को कोई ना कोई जगह मिली है. मैं कहता हूँ ऐसे ही प्रधानमंत्री, ऐसा ही बनारस की जनता देने का काम करेगी, और इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी बनारस में नरेंद्र मोदी जी की कि लोग देख के ताज्जुब करते हैं. 3 नहीं 5 नहीं, इस बार ज्यादा वोट मार्जिन से जीतेंगे नरेंद्र मोदी. That's what the BJP से. हाँ, आप बताइए. देखिए, किसी भी शहर का, जब बनारस शहर है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, पूरा विश्व जानता है,
और कॉरिडोर बनने के बाद बनारस में जो विकास की दंगा, आप देख लीजिए, रेस्टोरेंट भरे हैं, टोटो भरे हैं, हर किसी को जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कॉरिडोर बना के दिया है। आज देखिए पूरा हिंदुस्तान के 50,000, 40,000, 1 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं। तो ऐसे क्षेत्र का विकास बनारस के लिए नरेंद्र मोदी जी ही सोच सकते हैं। बनारस और अयोध्या दोनों का कॉरिडोर बनाकर उन्होंने उस क्षेत्र के विकास किया है। इसमें तो कोई शक नहीं है, मंदिर का विकास की अगर बात की जाए तो बहुत काम हुआ है, पर जब विकास ज्यादा होता है लोग भी ज्यादा आते हैं और चुनौतियां भी ज्यादा होती हैं। और ये मैंने खुद काशी विश्वनाथ मंदिर में देखा, लोग 5-6 बजे से सुबह लाइनों में खड़े थे, 5-6 घंटे उनको वेट करना पड़ा। पर सर एक बार उनसे भी सुन लेते हैं, फिर आते हैं। हाँ जी बताइए। मैडम देखिए, मंदिर मस्जिद तमाम बातें हो रही हैं। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, और किसी भी देश में लोकतंत्र जरूर जिंदा रहना चाहिए। रही बनारस की बात, बनारस में लगभग 150 लोग नामांकन करना चाह रहे थे, मात्र 40 लोग का नामांकन हुआ और उस 40 में से लगभग 33 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया यहाँ पर, और यहाँ के प्रशासन के द्वारा मिलकर यहाँ इनकी सरकार है। तो लोकतंत्र में ये चुनाव एक बहुत बड़ा महापर्व होता है, सबको लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। 40 में से 33 लोगों का नामांकन रद्द किया। 7 लोग वही लोग हैं जो 2-3 लोग मोदी जी के डमी कैंडिडेट, जैसे भाई साहब हैं, एक दिनेश यादव, तमाम लोग। तो मैं ये चाहता हूं कोई चुनाव जीते कोई हारे, हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो सबका अधिकार सुरक्षित रहेगा। लोकतंत्र है या नहीं, लोकतंत्र है या नहीं, ये तो हमें 1 जून को वैसे ही पता चल जाएगा। मैं जवाब दे दूं, सुनिए, देखिए मेरे पास समय ज्यादा नहीं है सर, मुझे एक बार इनके पास जाने दीजिए। 30 सेकंड। बनारस की कहावत है ना, सत्तारूढ़ से आप प्रश्न करेंगे, विपक्ष से प्रश्न करिए, विपक्ष ने क्वेश्चन उठाएगा। आपने इनको 4 मौका दिया, कंटिन्यू 4 मौका आपने दिया। एक कहावत है ना, हमें ठाकुर शादी में लोग ना हो, तो वही किस्सा हो गया, हर कोई मुंह उठा के चला। मैं जवाब 30 सेकंड। मेरा कहने का मतलब है, जिस तरह भाई साहब ने कहा कि 40 लोग और 150 लोग आने चाहते हैं, तो ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अब मोदी जी इतने देश के लोकप्रिय नेता हैं कि हर कोई आता है कि उसमें हम भी भागीदार बन जाए। 1 जून को पता चल जाएगा। बता दूं, बनारस की नगरी 2014 के पहले मंदिर और मंदिर मस्जिद नहीं थी क्या सर? रुक जाइए, बनारस के पहले मंदिर और मस्जिद नहीं थे 2014 के पहले? यही बनारस में जो कॉरिडोर बना है, हजारों करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लोग किए हैं। और जितने भी मंदिर बने हैं, मंदिर कॉरिडोर बना है अंदर, उसमें कम हजारों मंदिर शिवलिंग तोड़ा गया है, विनाश किया गया है। अभी बीएचयू की कन्या बहन, हम लोग की बहन, उसका सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। यही IT सेल के इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो ये कहा, कुछ नहीं बोले। और जब वो बीएचयू की छात्राएं जब रोड पे आई थी लंका गेट पे, तो मोदी जी पर ये सवाल एक महिला होके मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से उठाना चाहूंगी। ये सिर्फ ना भाजपा से, ना सपा से, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, सबको ही जवाब इस सवाल पे देना चाहिए। इस देश में जो हो रहा है उसको मद्देनजर में रखते हुए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास सबके पास फिर से आऊंगी। So yes, we're in the holy town of Varanasi, and when in Kashi, chai pe charcha to banti hai, and that's what we did, but with a very interesting group of people. This is a group of people who call themselves members of the Oxygen Club. They had a very interesting way of going about things, especially when it comes to social service. Hear it for yourself. We are in Varanasi, the cultural capital of not just India, the entire world. And well, Varanasi is many things. It's holy, it's mystical, it's enigmatic, but it's also very creative. I say this for a reason. I've managed to come across people of a club, the Oxygen Club, and they are trying to go about something very creatively. So let's try and understand from them what this club is all about. And given that this is election season, given that Varanasi is a VVIP constituency, as an election battle that everyone is really closely watching out for, let's hear it from them on what they think. I want to quickly go across to सर, अपना नाम बताइए पहले तो, फिर हम ऑक्सीजन क्लब के बारे में जानना चाहते हैं। पहले मेरा नाम विक्रांत दुबे है और मैं बनारस का हूँ, और हम लोग यहाँ सारे लोग बैठे हैं। ऑक्सीजन क्लब की टीम है। ऑक्सीजन क्लब जो ऑक्सीजन दे, तो हम लोग समाज को ऑक्सीजन देते हैं। प्लांटेशन करना, कोई गरीब है, कोई बीमार है, उसका इलाज कराना, और
जो बनारस की पहचान है, मूल पहचान, कि बनारसी गाली बहुत देते हैं, तो हम लोग गाली को कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे गाली दंड, हम लोग न किसी से दान लेते न एहसान लेते हैं, सिर्फ दंड लगाते हैं 10 रुपये एक गाली का। और हम लोग का रेट लिस्ट भी वहाँ लिखा, आपने देखा नहीं। तो इस गाली से जो पैसा आता है, जो चूँकि बनारस में गाली भी मशहूर है और यहाँ के सांड भी, तो उनका खूर खराब हो जाता है, पैर खराब हो जाता है, तो उनका इलाज हम लोग करवाते हैं इस पैसे से। आपने एक और शर्त बताई थी इस गैंग का, इस पूरी क्लब का मेंबर होने के लिए, उसके बारे में बताइए। सोसाइटी को लेके उस इंसान का क्या ओपिनियन होना चाहिए कि वो इस क्लब में उसको एंट्री मिलेगी? देखिए, 2 अहम चीज़ें हैं। अगर आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं हैं, आप अपने शरीर के लिए जागरूक नहीं हैं, तो हमारे क्लब के मेंबर नहीं बन सकते, पहली शर्त। माने आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज, जिम, कुछ ना कुछ करना ही करना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने व्यवसाय के अलावा आपको समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना ही है। जैसे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, और हम लोग ये चिन्हित करते हैं, जानते हैं, कम से कम 3 से 4 महीने हम लोग खुद, हर सदस्य चेक करता है, उसके बाद ही किसी को मेंबर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो आए मेंबर बना ले। मेंबर की भीड़ नहीं हमारे यहाँ, लेकिन जो हैं वो सॉलिड है। तो जान होनी चाहिए इंसान में और एक मकसद होना चाहिए, तभी ऑक्सीजन क्लब का मेंबर बनता है। आप एक बात जो सब इस इलेक्शन सीजन में बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार क्या लौटेंगे, सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्या सोचते हैं काशी में क्या पिछले 10 साल में हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या काम अभी भी बाकी है, और राजनीतिक तौर पे माहौल क्या है? देखिए, राजनीतिक तौर पे माहौल, अगर बनारस की बात, अगर आप काशी की बात करेंगे, तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, 2014 के आने के बाद बहुत से बदलाव हुए। उन्होंने बहुत सी योजनाएं ज़मीन पर उतारी और बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो ऐसा नहीं था कि बनारस को लोग सोच नहीं सकते थे, उस तरीके के बहुत से काम हुए हैं। लेकिन बहुत सी जगह पर अगर आप सवाल उंगली रखना चाहेंगे तो बहुत सी उंगली भी आप रख देंगे कि स्मार्ट सिटी कहा गया, लेकिन आप घूम रही होंगी तो आपको कितना स्मार्ट सिटी नज़र आ रहा होगा, वो आप खुद देख रही होंगी। लेकिन अगर दूसरी चीज़ अगर आप देखा जाए तो बनारस एक स्पिरिचुअल शहर था, लेकिन बनारस इन दिनों पिछले 2014 के बाद टूरिस्ट शहर हो गया है, तो वो भी एक अलग है। डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लोगों की अपनी आमदनी है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें बनारस में नज़र आती है। आप जिस नज़रिए से देखना चाहेंगे आपको बनारस देखिए। ये बताइए सर, ये जो टिन के डब्बे हैं जिन पे आप बैठे भी हैं, इसका बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहाँ पे भी मुझे बहुत क्रिएटिविटी दिख रही है, तो इसके बारे में बताइए सर। आपके ये क्रिएटिविटी जो है ऑक्सीजन क्लब के जो डिब्बे हैं, भारत जोड़ो, ये ऑक्सीजन क्लब है जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग, हर तरह के लोग यहाँ बैठते हैं। इनका मेन मोटो है कि फ्री सेवा यहाँ पे है, फ्री में सभी लोग जुड़ते हैं, और एक समाज के लिए जो उनका योगदान है, समाज के लिए जो काम कर सकते हैं, फ्री में लोगों को हेल्प करना, जानवर्स का या ऑक्सीजन के, कभी ये मेन जो क्लब बना था। जिस समय आप देखे होंगे कोरोना काल में, जिस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, उस समय भी ये क्लब ने जो है सभी को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, सभी के पास मदद प्रोवाइड किया। तो इनका मेन मोटो जो है इस क्लब में और इस टीम का यही महत्व है। सर कुछ राजनीतिक लिंक भी है इसका, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने ममता बनर्जी का भी इलेक्शन नारा, राहुल गांधी का भारत जोड़ो दिख रहा है मुझे। हम लोग समाज में ऑक्सीजन की तरफ 100% आना चाहते हैं, तो समाज में लोगों को पता चलना चाहिए। यहाँ सबकी जो भी चर्चित योजनाएं हैं, जो वायदे हैं, उसको हम लोगों ने लगाया है। यहाँ मोदी जी की गारंटी है, ममता बनर्जी की 1 लाख की बात है, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। पर कौन खरा उतरेगा इन वादों पे, वही तो सच्ची बात है। खरा उतरेगा वो तो अब वही स्थिति है कि यहाँ मामला सब समुद्र की तरह है। ये इसलिए बनाया गया है कि जैसे क्या है ना कि हर जगह चाय पर चर्चा होती है, हर पार्टी के लोग आते हैं, यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, हर आदमी आ सकता है। बनारस है, बनारस में हर आदमी को अपने बोलने की आज़ादी है, और ये यहाँ पर तो इन डब्बों पे जो जिनकी जो योजनाएं होती है, जो जिस पार्टी का होता है, वो अपना उन डब्बों पे बैठ जाता है। चलिए एक अनुमान लगाते हैं, इस बार चुनाव को लेके ये बात हो रही है और भाजपा ये कह रही है कि मार्जिन की बात हो रही है। मोदी जी वापस तो आ ही रहे हैं, कितने मार्जिन से वापस आ रहे हैं? पहले 3 था, फिर लगभग 5 लाख था, अब क्या 8-10 लाख होगा? किसका क्या अनुमान है, फटाफट ये बताइए। लगभग 6 लाख। ये तो वोटिंग परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, लेकिन बढ़ना चाहिए।
बढ़ना चाहिए, आप क्या कहेंगे? 6 लाख के आसपास हमको लगता है कि मार्जिन रहेगी। देखिए, मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है तो उनको वोट मिलना चाहिए। बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ वही जो आपने कहा कि यहाँ लड़ाई सब बढ़ाने की है, कितना बढ़ जाए, लेकिन लोग यहाँ पे हर किसी से पूछेंगे तो मोदी को की ही बात करेंगे कि मोदी ने बनारस में काम बहुत किया। कांग्रेस के जो अजय राय हैं वो भी टक्कर देने उतरे हैं मोदी जी को फिर से, तो उनकी क्या पहचान है बनारस में? वो कहते हैं कि मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं यहाँ का ग्रास रूट लीडर हूँ। बात ये है मैडम कि 3 रिजिम, तीसरा रिजिम है उनका अजय राय का, और तीसरे रिजिम में मोदी के सामने सब दीपक की तरह टिमटिमा रहे हैं। तो अजय राय की बहुत नहीं है अजय राय की अपनी व्यक्तिगत यहाँ पे है थी, लेकिन मोदी के सामने तो हमको लगता है कि कोई मतलब नहीं। Welcome back. A little while ago, my friends and I were talking about Kashi Vishwanath Temple. Now, there's been much talk about how from Kashi to Kashmir, the Prime Minister's focused on temple renovation through and through his term as the Prime Minister. But it's also important to understand the ground reality. What after this kind of an inauguration and a revamp, what are the devotees really feeling about it? Let's hear it from them. What you see is the Kashi Vishwanath Temple. We've now reached the Kashi Vishwanath Temple, also known as the Golden Temple, one of the most revered and ancient Hindu temples in India, situated in this very holy city of Varanasi. It's a testament to the rich spiritual and cultural heritage of India, and the number of devotees that you really see here is a testament to the very idea that people believe in as far as the Kashi Vishwanath Temple is concerned, with a history spanning over several decades. And we've seen the kind of development that this temple has also seen. The origins of this temple can be traced back to ancient times. Its history is said to date back to time immemorial, and its architecture has also been spoken of. When we talk about India's history and culture, this is a place that everyone talks about. What you see on the other side of the temple, the opposite side of the temple to that side of the temple, is the Kashi Vishwanath Corridor, which was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in 2021. And a lot of development that has taken place at this very temple premises. There's a hangar, a German hangar that you see right above the staircase, and a lot of shops that have also been opened on the sides. There is also a bhavan wherein the elderly are staying for free of cost. They're being provided food, their medical treatment is free there. So that's the kind of service that this temple is really giving to the people of काशी। दर्शन हो गए आपके? हाँ, हो गए मेरे। कैसे रहे दर्शन? शिव जी का आशीर्वाद मिल गया? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। मोदी जी बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। महादेव जी का बहुत बढ़िया हो गए। धन्यवाद धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, बहुत बढ़िया। शिव जी की बहुत अच्छी शिव जी की भक्ति में कुछ पंक्तियाँ सुना दीजिए। हाँ, खूब अच्छी। मैं तो जल चढ़ावा, सुबेरे उठा, 5 बजे नहावा और शिव जी की पूजा करा दिया और सब आनंद है। राजस्थान से आए हम, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमको। नागौर से आए, बुला दिया मेरे। पहली बार आए। बाबा ने बहुत चमत्कार दिखाया बाबा ने। और जहाँ पे प्रशासन ने जैसा इंतजाम किया उससे खुश हैं? जैसे लाइनें बनी हुई हैं, जैसे दर्शन हो रहे हैं लोग? बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है। मोदी जी बहुत अच्छे करिए, तुमको धन्यवाद है। हाँ, गरीबों को हेलो होनो थे, बहुत बढ़िया है मोदी जी, बहुत बढ़िया है। बढ़िया काम। धन्यवाद। So you see the kind of people and how impressed they are really with the manner in which they've been able to seek Shivji's darshans. I'm going to go across to a couple of people here as well. सर, बात करना चाहती हूँ आपसे। कहाँ के आप? MP से। पहली बार आ रहे हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने? पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है?
कोई खास व्यवस्था तो नहीं है। व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है यहाँ पे। रोइंग में भी कोई सुधार नहीं है, सब जगह जगह। कितना इंतजार करना पड़ा? हमें 5 घंटे हो गए। 5 घंटे? हाँ, सुबह 8 बजे मंडप लगे हुए। आप बताएंगे कितना इंतजार करना पड़ा यहाँ? सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं और इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल है। आप कहाँ से हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। 7 बजे से लाइन लगाए, अब जाके दर्शन में खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। खुश कोई बहुत सुविधा, है दर्शन करके, बट खुश नहीं है। दर्शन करके खुश है, बट व्यवस्था अभी बढ़ानी बड़ी पड़ेगी। परेशानी है। हम एमपी से, रतलाम से। एमपी से कैसे कैसा लग रहा है विश्वनाथ जी के दर्शन? का बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ ज्यादा है। So that's the kind of response coming in, and of course it's a long queue. Till the very end you see people still coming in, and they're going to have to wait for a while. They've been saying they've been waiting to seek Shivji's darshan since 5 a.m., 7 a.m. in the morning. But all of them immersed in bhakti clearly, and you can see the kind of chants that are also being heard. That's the mood in Kashi Vishwanath temple. We're reporting live from Varanasi, and this is one place that everybody visits when they come to Varanasi. We'd gone to Kal Bhairav temple before this. That, remember, people say is the first step. Before you offer prayers to Shivji, you must seek Kal Bhairav's blessings, because he ensures that nobody with impure intentions reaches Shivji in Kashi Vishwanath temple.